Jai Hind and a very good morning to each and every one of you. Today I'm your educator Gaurav R. Dhanik. Welcome you in the class of Social Science. As you are the students of Standard 10th, you all have seen the previous videos of the same chapter which we are going to initiate now. The chapter which we have started now is chapter number 15, Economic Development. So now we are going to initiate that chapter and we have to move the further topics. तो अब अगला टॉपिक जो हमें देखने को मिल जाता है आफ्टर द फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी is economic and non-economic activities. So students, let me clear you कि this topic is very much important, especially for those who are going to take commerce in the future, right? Because these things you have to understand it very well according to its concept. Whatever the things which include money is known as economic activity. Suppose for an example, I have discussed many things about the economic development, that we have to exchange the commodities. yes or no? यानी कहीं ना कहीं हमने जब बात की थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो हम बात करते थे कि भाई चीज़ों को ख़रीदना और बेचना होता था, यानी या तो गुड्स या तो सर्विसेज, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आज मार्केट में अवेलेबल है. कोई भी देश ये दो ही चीज़ों को सेल आउट करता है, वेदर इट इज़ अ गुड और वेदर इट इज़ अ सर्विसेज, राइट? गुड्स में कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, सोप, ऑयल, comb, anything, washing machine, TV, these all are considered to be the goods because these are tangible, okay? And the services which we can't see, suppose for an example, if I am taking a ride of a bus, ठीक है, तो I have taken a ticket from a conductor, paying money to him, and he will give me a ride in his bus, yes or no? So this is an example of a service. So especially if we will categorize it that goods and services are two different concepts, as well as we need to understand that ki what is economic activity and what is non-economic activity. So as we can see over here, then economic activity is all the activity which include money or which includes the earning or spending of money. So in short आपको दिमाग में यही रखना है कि जहाँ पर मनी आए, जो चीज़ जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी हम मानेंगे. चाहे आप एज अ फार्मर काम कर रहे हो, एज अ आर्टिशियन काम कर रहे हो, एज अ बिजनेसमैन काम कर रहे हो, या फिर मेरी तरह एज अ टीचर जॉब कर रहे हो. दिस ऑल एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इंक्लूड्स मनी, राइट? सो व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? सिंपल है, ठीक है, विच इज़ नॉट एम्ड, राइट, नॉट एम्ड फॉर द मनी स्पेशली, यानी यहाँ पे कोई इनकम आपको नहीं होने वाली है, या इनकम के अलावा कोई दूसरी चीज़, रेसिप्रिकेट मीन्स डिफरेंट थिंग्स, शायद वो उसके बदले कोई पैसा या फिर पैसे से जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है. सो मेन जो कंसर्न नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का है, दैट इज़ जस्ट फॉर इट्स डन फॉर द मेंटल सेटिस्फैक्शन, ठीक है, यानी अपने मानसिक संतुष्टि के लिए हम खासकर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि इसमें पैसे का तो कोई रोल है ही नहीं और पैसे जैसी किसी भी चीज़ का कोई रोल नहीं है. फॉर एग्जांपल, मदर इज़ नर्चरिंग हिज चाइल्ड, राइट? आपने देखा होगा जो माँ होती है वो अपने बच्चों को कैसे पालती है, ये उसके लिए कोई मनी वो उनसे नहीं लेती. सो इट्स एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. वाइल इन सेम एज अगर यही हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखें कि अगर इफ़ अ मेड इज़ कमिंग टू योर होम एंड शी इज़ कुकिंग फूड फॉर यू, then it is considered to be an economic activity. Reason because a maid is going to charge, take up for her services, but mother didn't. That's why a mother work should be a non-economic activity, and a maid work, hence it includes money, it's an economic activity. ठीक है बच्चों, तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है. इन शॉर्ट आपको सिर्फ मनी का इन्वॉल्वमेंट देखना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं होता. After that, now we have to move to the next topic, which is the concept or the structure of Indian economy. बच्चों, in India there are generally three sectors of economy, ठीक है, primary, secondary and service. So these three sectors, what are they and why they are related with? Let's see this. So let's start with the primary first. Primary activity generally वो activities होती है जो nature से जुड़ी हुई होती है स्पेशली, ठीक है. सो द थिंग यू शुड कीप इन माइंड दैट द बिजनेसेस और द एक्टिविटी विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ नेचर, ठीक है, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कैटल रेयरिंग हो, चाहे वो कैटल ब्रीडिंग हो,
ठीक है, जैसे चरवाहे लोग जो पशुपालन करते हैं, चाहे वो फिशिंग कर रहे हो, पोल्ट्री फार्म कर रहे हो, या फिर किसी का कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई काम हो, या फिर माइनिंग रिलेटेड वर्क्स हो, तो दीज ऑल आर कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी एक्टिविटीज़ और प्राइमरी सेक्शंस, राइट। सो इस तरीके के सारे जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, अंडरस्टूड, विच इज़ रिलेटेड टू नेचर। नाउ विल सी द सेकेंडरी वन। सेकेंडरी थोड़ा सा लार्ज स्केल हो जाता है, ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री सारी इसके अंदर आ जाती है, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हो, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज़ हो, इलेक्ट्रिसिटी कह लो, या फिर गैस, वाटर सप्लाई, वॉट एवर दिस इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर्स के अंडर आते हैं, राइट। इसे हम इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें स्मॉल और बिग गिगनेटिक मशीन्स, गिगनेटिक मीन्स बिग मशीन्स, ह्यूज मशीन्स भी इन्वॉल्व में ली जाती है। सो डिफरेंस आपको समझ लेना है, प्राइमरी और सेकेंडरी में जो मेजर डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ प्राइमरी इज़ रिलेटेड विथ नेचर एंड सेकेंडरी जनरली यूज्ड रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी एंड कन्वर्टेड टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, यानी जो भी रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर पैदा करता है नेचर से, ठीक है, वो फिर कहाँ पास कर दिया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर को, और सेकेंडरी सेक्टर अपनी मशीन्स के थ्रू, अपनी स्किल्स के थ्रू उसे एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है और बाद में जाकर वो चीज़ें बेच दी जाती है। यस, सो नाउ यू ऑल आर वरीड अबाउट कि अगर यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो गई तो ये सर्विस सेक्टर किस लिए बनाया गया, ठीक है। सो यस, योर डाउट इज़ एब्सोल्युटली राइट, वाई दिस सर्विस सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर इज़ बीन नेम्ड ऑफ। तो यहाँ आपका डाउट क्लियर होगा इस पैराग्राफ में कि जनरली कभी भी प्राइमरी से सेकेंडरी तक या फिर सेकेंडरी से कंज्यूमर तक ये जो पूरी लिंक होती है, ठीक है, ये पूरी लिंक कहीं ना कहीं भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर सही चीज़ें सही समय पर डिलीवर नहीं होगी, ठीक है, नहीं पहुंचेगी, तो फिर भी आपको इन शॉर्ट आपको वो चीज़ कोई काम की नहीं रह जाती है। ये सुनो, सो उसी तरह सर्विस सेक्टर इज़ अ ब्रिज बिटवीन प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू कंज्यूमर, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन, दैट ट्रेड इसके अंदर हम आ जाता है, कम्युनिकेशन इसके अंदर आ जाता है, देन एयरवेज, वाटरवेज, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज़्म, एंटरटेनमेंट, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो अदर देन प्राइमरी और सेकेंडरी है वो सारी सर्विस सेक्टर के अंदर हम गिनते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ सर्विस सेक्टर, इट इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज नॉट गुड्स, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जनरली जो कंट्रीज़ डेवलपिंग होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं, ठीक है, यानी एग्रीकल्चरल वर्क उनका थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से उनकी नेशनल इनकम इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, और वहीं जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो सेकेंडरी और सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं, दैट्स वाई उनकी जो नेशनल इनकम होती है वो कंपैरेटिवली डेवलपिंग नेशन से ज़्यादा होती है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच हैज़ 3 पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस, ठीक है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस 3 पार्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री और हाउ इंडस्ट्री वर्क्स। जनरली चाहे हम छोटी से छोटी इंडस्ट्री देख लें या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री देख लें, कोई भी इंडस्ट्री को कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इन 4 चीज़ों को क्या कहा जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी अगर आपको कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, बनानी है, तो आपको उस चीज़ को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए ये आपको जान लेना चाहिए। सो द थिंग्स विच वी रिक्वायर टू डू द प्रोडक्शन, दे आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 4 सेक्शन। दे आर, नंबर 1 इज़ लैंड, number 2 is capital, number 3 is labor and number 4 is entrepreneurship, right? तो इन 4 भागों में हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बांट देते हैं। इसे आसान शब्दों में याद रखने के लिए हम इसे CELL का नाम दे देते हैं ताकि हमें ये अच्छे से याद रहे, ठीक है। सेल साइंस में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, हम लोग साइंस नहीं पढ़ रहे हैं बट फिर भी हमें ये शॉर्ट फॉर्म से ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद रहेंगे। CELL, C stand for capital, E stand for entrepreneur, L stand for land and the second one stand for labor। तो बच्चों देख लेते हैं कि ये चारों है क्या। As you all know that any of the business which exist in on earth has to be on the upper surface or the land of the earth surface। चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, चाहे वो कितनी भी छोटी कंपनी हो, कहीं ना कहीं उसका जो लेआउट बनेगा, उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ज़मीन पर ही माना जाएगा। सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ज़मीन जो है
वो बिज़नेस के लिए एक फिक्स एसेट तो है ही, साथ ही साथ कंपनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, राइट। इसके साथ साथ फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन, मिनरल्स, ये सब भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न, बिकॉज कंपनी इज़ गेटिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो फिर उनके जो रॉ मटेरियल्स होंगे वो तो यहीं से मिलेंगे, राइट। कोई डायमंड इंडस्ट्री है या कोई कॉपर इंडस्ट्री है, कोई स्टील इंडस्ट्री है, तो उसके लिए भी मिनरल्स रॉ मटेरियल हुए जो उसको अर्थ सरफेस में मिलते हैं। सो इन शॉर्ट, अर्थ और लैंड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ऑल्दो इट इज़ नेचुरल बट इट इज़ अ factor of production. Secondly, it is a capital, right? Capital, what is capital? Generally it is a money which involved in any of the business, especially when you want to establish it. यानी जब भी हम कोई नया बिज़नेस शुरू करते हैं तो उस नए बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। रीज़न, क्योंकि उस बिज़नेस को करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, कुछ जगहों का भी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जस्ट दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड कैपिटल, यानी हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, असेट्स की ज़रूरत होती है जो हमारे बिज़नेस को आगे लेकर जाएं, और बिज़नेस में हमें थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा बिकॉज वी वांट टू मेक इट मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। सो कैपिटल इज़ अ मनी विच इज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है लेबर, ठीक है। किसी भी बिज़नेस में लेबर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। रीज़न, क्योंकि वही है जो बिज़नेस में फिजिकल और मेंटल वर्क कर रहा है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ अ बिग कंपनी like for an example, if we'll take of Tata or Reliance, right, it's a big industries but many laborers are working in it, ठीक है, behind the curtains for making the company more gainful, and we can say that labor are the living factor of production, right, they are the living factor of production। तो ये आपको याद रखना है, कैपिटल लैंड के बाद जो लेबर है ये लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसमें आप लेबर्स, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिशियंस, इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज दीज ऑल आर लेबर्स। सो नाउ लेट्स टू मूव टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो व्हाट दिट मीन्स केम फ्रॉम, हमें इससे क्या समझना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ पर्सन, राइट, हम इसे बिजनेसमैन नहीं कह सकते पर इसका काफ़ी सारा काम बिजनेसमैन जैसा ही होता है। अ पर्सन हु कंबाइंस ऑल थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। एक ऐसा व्यक्ति जो इन तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अच्छे से इस्तेमाल करे, उसका यूज़ करे, उसे ही हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे। इन शॉर्ट, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, सारे रिसोर्सेज यानी लैंड, लेबर और कैपिटल को एक साथ कैसे यूज़ किया जाए ताकि बिज़नेस को प्रॉफिट मिले, ये किसका काम होता है, ये एंटरप्रेन्योर का काम होता है, राइट। इफ़ द एंटरप्रेन्योर इज़ पुअर देन द प्रॉफिट इज़ नॉट गोइंग टू बी हाई। सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वैसे तो ये चारों के चारों फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं बट ऑल्दो सबका अपना अपना इम्पॉर्टेंस अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा है। सो CELL याद रखना है आपको, दीज आर कंसिडर टू बी द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट बच्चों। अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं हम कि ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, राइट। तो उसमें सबसे पहली जो कोट आपको यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन में देखने को मिलती है कि दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यस, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो कभी कम नहीं होती, लेकिन उसके पास उपलब्ध संसाधन यानी रिसोर्सेज ये ज़रूर कम हो जाते हैं। किसी भी नेशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हमेशा स्कैरसिटी को देखें, यानी जब भी हमारे मार्केट में या फिर हमारे देश में किसी भी चीज़ की कमी हो तो हम उस कमी को सही समय पर भर दें ताकि हमें फ्यूचर में उससे इनकन्वीनियंट फील ना होना पड़े। सो इन द सेम वे अ कंट्री फेसेस अ प्रॉब्लम रिलेटेड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कंट्री के लिए कि वो अपने रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से प्लान करें कि वो इवनली बटे, ठीक है, इवनली मीन्स बराबर बराबर, जिससे हमें ये पता हो कि जो काम हम कर रहे हैं दैट वाई वी आर डूइंग इट एंड व्हेन वी हैव टू डू दैट हाउ मच क्वांटिटी आई हैव टू प्रोड्यूस। यानी जो मुझे काम करना है, ठीक है, वो मैं क्यों कर रहा हूँ, वो मुझे कब करना है और वो मुझे कितना करना है। ये सब सवालों के जवाब हर कंट्री, हर गवर्नमेंट को ढूंढने ही पड़ते हैं टू distribute their resources. After distributing their resources, let us understand the different characteristics of it. As you can see, the first point, that is unlimited wants
ऑफ रिसोर्सेस। जनरली अनलिमिटेड वांट्स क्या हो गया कि लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो अनकाउंटेबल होती है, यस और नो, ठीक है। इंसान की जो ज़रूरत होती है वो कभी भी आप उसे फ्यूली सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, राइट, इफ़ द पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू बी। इन द सेम वे अनलिमिटेड वांट्स को कंपेयर करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, बट फिर भी हम उसके लिए लगातार काम करते रहते हैं। हर इकोनॉमी उसके लिए काम करती है। एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल द वांट्स वन हु मेक द सिलेक्शन अमाउंट द वांट, मतलब कि उसमें हम उसी रिसोर्सेज को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें जो रिसोर्सेज रिन्यूएबल्स हैं, ठीक है, जिनका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, इजीली ख़त्म हो सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम थोड़ा यूज़ कम करें ताकि हमारे रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए भी बच सकें। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट ऑर्डर टू टर्म्स ऑफ नेसेसिटीज़, यानी हमें उन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना है, उनको ही ज़्यादा हमें इस्तेमाल में लाना है, स्पेशली जो नेसेसिटी थिंग्स है, राइट, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, राइट, और हमारी जो वांट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसी चीज़ों के लिए हमें खासकर सबसे पहले वो ज़रूरतें पूरी करनी पड़ेगी जो प्रायोरिटी में है। प्रायोरिटी में है मतलब जो जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है, पहले जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले वो करना है, और उसके बाद देन जो लेस इम्पॉर्टेंट है वो बाद में, राइट, जिससे क्या होगा कि हम हमारे रिसोर्सेज को अच्छे से प्लान कर पाएंगे। थर्डली, हमारे जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे हैं, उसमें वेल्थ और मैन मेड रिसोर्सेज सारे आ जाते हैं, दे ऑल आर लिमिटेड। अब इसे हमें जुडिशियसली यूज़ करना है। जुडिशियसली मीन्स सोच समझ कर, ध्यान में रख कर, ठीक है, इन शॉर्ट बहुत अच्छे से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टूल्स कैन बी डन बाय कीपिंग सिलेक्टेड वांट्स इन द सेंटर, यानी सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमारी वांट्स क्या हैं, और उसमें से जो नेसेसिटी वांट्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है, पहले हम उन्हें पूरा करेंगे, ठीक है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, द लास्ट पॉइंट इज़ ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज। एज आई हैव टोल्ड यू दैट कि हमें उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है जो रिसोर्सेज स्पेशली हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, जिनको हम दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी मल्टीपल यूसेज। इन शॉर्ट, जो जिनका हम मल्टीपल यूजेस बार बार कर सकें, वैसे रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल मिलाएं। कंपैरेटिवली ऐसे रिसोर्स जो एग्जॉस्ट हो जाए उन्हें हमें जितना हो सके जुडिशियसली, यानी सोच समझ कर यूज़ करना होगा। इसके अलावा अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, जैसे हमारे घर में, तो जैसे शक्कर ख़त्म हो जाती है, तो कभी कभी हम गुड़ की भी चाय बना लेते हैं, क्योंकि गुड़ इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ शुगर, ठीक है, जैगरी इज़ द गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर, वी कैन से दैट। सो तो उसी तरह हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेना है, राइट। अगर वीट हमारे पास नहीं है तो द बाजरा, मेज, ग्राउंडनट, दीज आर द बेस्ट सब्स्टिट्यूट, राइट। सो वी कैन कल्टिवेट इट, right, at the higher dosage. In the same way, we have to search out the best alternative possible outcome to face for this scarcity, right बच्चों। तो ये 4 पॉइंट्स आपको देख लेने हैं अच्छे से कि हमें रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, तो उसमें से पहले नेसेसिटीज़ को हम अलग कर लेंगे, और उन नेसेसिटीज़ में अगर हम कहीं सब्स्टिट्यूट गुड्स यूज़ कर सकते हैं तो अगर हम करेंगे, देन our country would be more benefited in terms of exhausting resources, ठीक है बच्चों। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है, द कोर ऑफ द चैप्टर, कि हाउ सच रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। सो जनरली इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द 3 डिफरेंट सिस्टम ऑफ मार्केट, राइट। हमारे पूरे वर्ल्ड में हर देश अलग अलग प्रकार से अलग अलग सिस्टम्स को यूज़ करता है, ठीक है। जनरली आपको जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, दैट इज़ मार्केट सिस्टम, सोशल सिस्टम, एंड वन मोर इज़ देयर विच इज़ मिक्स सिस्टम। उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट मैकेनिज़्म या फिर मार्केट सिस्टम क्या होता है, या फिर सोशल मैकेनिज़्म या सोशल सिस्टम क्या होता है। सो एज देयर वर्ड सजेस्ट यू दैट मार्केट सिस्टम इज़ जनरली बेस्ड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ मार्केट ओनली, राइट। यानी अगर हम बात करें तो अमेरिका, जापान जैसे देश के पास मार्केट इकनॉमी है, और ये इकनॉमी जनरली एक डेवलप्ड इकनॉमीज़ के अंदर गिनी जाती हैं। मार्केट सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, तो समझ जाना है हमसे क्या पूछा जा रहा है, मार्केट सिस्टम के बारे में। मार्केट सिस्टम एक ऐसा तरीका है जिसका बेस होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, यानी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा होता है, और ये सिर्फ ये देखते हैं कि हमें अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है ताकि अच्छा प्रॉफिट मिले, राइट। इस सिस्टम में प्रोडक्शन पे खासा ध्यान दिया जाता है, खासकर प्रॉफिट के दम पर। प्रॉफिट इसका एक सेंटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी
जो भी सिस्टम जैसे अमेरिका और जापान के देशों में, वहाँ पर प्रॉफिट को ध्यान में रखकर ही चीज़ें किए जाती हैं। पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, फाइंड मोर स्कोप ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। यानी मार्केट इज़ अ कम्प्लीटली फ्री इन दिस सिस्टम। मार्केट को बिल्कुल फ्री रख दिया जाता है, यानी गवर्नमेंट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता और मार्केट अपने हिसाब से चीज़ों को बढ़ाता घटाता रहता है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी में और ना ही किसी मेथड में। तो मार्केट सिस्टम समझ में आया, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होता है, प्रॉफिट का ही मोटिव होता है और गवर्नमेंट का रोल कम होता है। दैट इज़ मार्केट सिस्टम और कैपिटलिस्ट सिस्टम। लेट्स सी द सेकंड वन, ठीक है। उससे पहले हम सबसे पहले ये देख लें कि मार्केट सिस्टम जो है वो स्पेशली आपको किन चीज़ों में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या मदद करता है। पहली चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्योंकि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट। इसीलिए हम जनरली यहाँ पर कंपटीशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। द कंपटीशन कंट्रोल द होल मार्केट विद द इनविजिबल हैंड, ठीक है बच्चों, ये याद रखना। इनविजिबल हैंड मतलब यहाँ पर जो कंपटीशन है वो दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि पीपल है, एवरीबडी इज़ वांट प्रॉफिट ओनली, सो मार्केट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, सभी के लिए खुला रहता है। जो आना चाहे वो आ सकता है, जो ऐसी कीमत लेके आना चाहे आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी को कंपटीशन का इक्वल अधिकार होता है, राइट। और कंट्रोल जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा। एंड ऑल्दो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्री इकोनॉमी, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। स्टिल नॉट, देन विल कंसिडर द फीचर्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। फीचर्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी में जो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वो है ओनरशिप, यानी मालिक कौन है। मालिक जनरली इसमें इंडिविजुअल होगा या तो प्राइवेट होगा, यानी गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल नहीं होता, ज़्यादा जो कंट्रोल होगा वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही माना जाएगा। सेकेंडली, प्रॉफिट इसमें ज़्यादा दिमाग में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके साथ साथ कंज्यूमर को अच्छी गुड्स मिलती है इसमें, क्योंकि कंज्यूमर को अगर अच्छी गुड्स नहीं मिलेगी तो वो खरीदेगा नहीं, वो खरीदेगा नहीं तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट ही तो चाहिए इस सिस्टम में। इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें हम ना के बराबर समझे तो ही ठीक रहेगा, ठीक है। यानी बहुत कम जो होता है, जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का इसमें सबसे कम कंट्रोल। डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के हिसाब से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और इकोनॉमिक डिसीजंस हमेशा प्राइस को दिमाग में रख के ही लिए जाते हैं। सो दिस 6 आर कंसिडर टू बी द फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। अब आगे देखते हैं हम इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला बेनिफिट है ये बहुत प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड होता है मीन्स कि इसमें बहुत कम चांसेस हैं धोखाधड़ी होने के, राइट, इलीगल बिजनेस होने के, राइट, अनएथिकल बिजनेस होने के। जो भी होगा फेयर होगा, सही होगा, ठीक है। इस वजह से इसका एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये माना जा सकता है। सेकेंडली, ये रिसोर्सेज को ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक बनाते हैं, यानी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। एवरीबडी इज़ कम्पीटिंग फॉर द बेस्ट, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से कम्पीट कर रही है तो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आपको बना के देगी, ठीक है, ताकि जैसे नाइकी और रिबॉक में कंपटीशन होगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो तो अच्छा ही मिलेगा ना। इसी तरह प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत अबैंडेंट होता है। अबैंडेंट मीन्स मोर इन क्वांटिटी, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा वॉल्यूम में जो हमारा प्रोडक्शन होगा। पॉइंट 4 शोज़ दैट कि नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की जाएगी, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नए टॉपिक्स, नए कॉन्सेप्ट्स लोग ले लेके आएंगे, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बी डिफरेंट, एवरीबडी वांट्स टू मेक प्रॉफिट, यस। और इसके अलावा लास्ट की जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो अच्छी होगी, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनविजिबल कंपटीशन है, ठीक है, कहीं से भी कोई भी आ सकता है, ठीक है, सबके लिए मार्केट खुला हुआ है। तो आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड बना के रखना पड़ेगा, ताकि कोई भी दूसरी कंपनी आपसे बेटर प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में ना आ जाए, जिससे आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। सो मार्केट सिस्टम प्रोटेक्टेड है बच्चों, अच्छे प्रोडक्ट बनाता है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, और इसके साथ साथ नई नई चीज़ों को भी ईजाद करता है, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करता है। जैसा कि हर चीज़ के अंदर कुछ खासियत होती है तो खामियां भी होती है। यानी अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ मार्केट सिस्टम। सबसे पहला जो सिस्टम इसके अंदर है कि हम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, राइट। अब प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं तो लग्जूरियस चीज़ तक तो ये सारी चीज़ें सही है, पर जो नेसेसिटी चीज़ है हम उसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकते, तो ये चीज़ गलत है।
कि जो नेसेसिटी चीज़ हैं उस पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट के नज़रिए से नहीं सोचना चाहिए, सर्विस के नज़रिए से सोचना चाहिए। ये इसका पहला लिमिटेशन हम समझ सकते हैं। सेकंड, कि इसमें कोई पॉलिसी नहीं होती, ना कोई स्टेट बनाता है, ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज के लिए पॉलिसी होती है, तो लोग इसे अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, अपने हिसाब से यूज़ करते हैं तो ये एक्सप्लॉइट हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को, और इसीलिए इनका वेस्ट भी हो सकता है। ये इसका दूसरा लिमिटेशन है, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है, प्राइवेट लोग अपने हिसाब से पॉलिसी बना रहे हैं। तीसरा वाला है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस ऑफ मार्केट कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइट। कभी कभी ये भी होता है कि ज़्यादा कंज्यूमर्स को नॉलेज नहीं होता मार्केट के बारे में, तो ये भी हो सकता है कि उनसे ज़्यादा चार्जेस लिए जा सकें, ठीक है, क्योंकि मार्केट कंपटीशन है, प्रॉफिट का काम हो रहा है, तो भाई ये हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा चार्ज करे किसी भी चीज़ का। सो व्हाट यू नीड टू डू, अ कंज्यूमर हैज़ टू बी अ नॉलेजफाइड, और वो जो मार्केट सिस्टम होता है इसमें प्रॉफिट ही ज़्यादा कंसर्न में रखा जाता है। ये एक सेंट्रलाइज प्रोसेस है, सेंट्रलाइज है मतलब किसी एक जगह से कंट्रोल होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनकम जो होती है वो काफ़ी वी कैन से दैट इनइक्वल हो जाती है। इनइक्वल मीन्स कि जो बड़ी कंपनी है, राइट, वहाँ की तो इनकम ज़्यादा ही आएगी, राइट, और जो छोटी कंपनी है, ठीक है, जो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाती, वो ऑटोमेटिकली मार्केट से वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फियर ऑफ मोनोपोली हमेशा बना रहता है, ठीक है। मोनोपोली मीन्स कि सिंगल, ये जो भी कंपनी चल रही है वो मोनोपोली ना ले ले। मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर। अब ये सिंगल सेलर क्या होता है कि मार्केट में उसके अलावा वैसा प्रोडक्ट कोई दे ही ना पाए, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो वो अपना रेट रखेगा, अपने हिसाब से चीज़ें चलाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमिक इनस्टेबल हो जाएगी और जो लेबर काम कर रहे हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन भी शुरू हो जाएगा। सो दिस 5 आर कंसिडर्ड टू बी द लिमिटेशंस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म्स। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ रहे हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट सिस्टम की तरफ। इट इज़ सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम मीन्स इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट रूल मीन्स जनरली ये सिस्टम हमें रशिया और चाइना में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? रशिया और चाइना में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रोल है, कंट्रोल वो ज़्यादातर देखने को मिलेगा वो गवर्नमेंट का देखने को मिलता है। एम्पोजमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट का ही माना जाता है। सोशल सिस्टम जो है वो मार्केट सिस्टम का पूरा अपोजिट है, ठीक है बच्चों। जैसे कि जो चीज़ें हमने मार्केट सिस्टम के बारे में समझी वो सोशल सिस्टम में बिल्कुल उल्टी हो जाती है, मीन्स टोटली डिफरेंट हो जाती है। यहाँ प्रोडक्शन का तो सवाल है ही, इन्वेस्टमेंट का तो सवाल है ही, बट यहाँ हम जो बात रखते हैं, जो दिमाग में चीज़ रखते हैं वो है सोसाइटी इन माइंड, ठीक है। मतलब चीज़ें जो भी चाहिए हमें, उन्हें वेलफेयर और सोसाइटी को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएँ, ये सब चीज़ें दिमाग में रखी जाती है। सोशलिस्ट सिस्टम में प्रॉफिट जैसी कोई चीज़ ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रखते हैं, सोशल वेलफेयर, ठीक है, यानी समाज का कल्याण। बेटर से बेटर हम लोगों को चीज़ें दे पाएँ, ठीक है, कम रेट्स पर दे पाएँ, यही इनका ज़्यादा मोटिव होता है। प्रोडक्शन से लेकर स्टेट गवर्नमेंट फैक्ट्रीज तक दे इन्वॉल्व इन देयर लेबर्स वेर पेड अकॉर्डिंगली, मीन्स यहाँ कोई एक्सप्लॉयटेशन लेबर्स का होता नहीं है, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। अंडरस्टूड? देन let's see the features of social system. Number 1, it is owned by state, ठीक है, स्टेट इसका मालिक होता है, यानी गवर्नमेंट इज़ द ओनर और द किंग इन सोशल सिस्टम। सेकेंडली, डिसीजंस पे टेकन बाय गवर्नमेंट ओनली, ठीक है, सरकार ही लेगी क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में है। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट की जगह वो सोशल वेलफेयर का काम करेंगे, ठीक है, यानी समाज कल्याण का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि लेबर्स हैं उन्हें प्रॉपर वेजेस मिलेगी, ठीक है, जैसा वो उनका काम करेंगे। बट वी कैन से दैट इसके बेनिफिट्स क्या हैं सोसाइटी के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें काफ़ी ये बेनिफिट पहुंचाएगी। तो एज़ यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट, कि अगर हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें बनाएंगे तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि लग्जूरियस चीज़ें होगी वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, राइट, एंड अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड लग्जूरियस थिंग आइटम्स विल नॉट बी प्रोड्यूस बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग नेसेसिटी थिंग्स, ठीक है, जो ज़रूरी है हम वही बनाएंगे। इसके अलावा जो डिसीजंस होता है प्रोडक्शन का, वो पॉलिसीज़ के थ्रू होता है क्योंकि सरकार बना रही है, जिसकी वजह से कोई भी वेस्टेज होता नहीं है, किसी भी रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होता। इनकम डिस्पैरिटी, यानी जो वहाँ पे मार्केट सिस्टम में एक व्यक्ति ज़्यादा कमा ले या एक कंपनी ज़्यादा कमा लेता, यहाँ पर ऐसा नहीं है, द इनकम इक्वेलेंट रहेगी। सो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम और प्रॉपर्टी वुड बी रिमूव्ड एंड कंज्यूमर वेर नॉट बी एक्सप्लॉयटेड। So these 4 are considered to be the main factors of or the benefits of social system, right? Russia and China is having. Now we'll move to the limitations first.
limitations as the negative forms, it states that कि it's based on the necessity things only. तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये नई चीज़ों को इनकरेज नहीं करता और मोटिवेट नहीं करता प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। यानी कुछ नया करने के लिए, कुछ ज़्यादा करने के लिए लोग अप्रोच नहीं होते, एंड पीपल आर डूइंग द सेम थिंग विच दे आर डूइंग यस्टरडे, ठीक है। यानी कुछ इनोवेशन नहीं है, ये सबसे बड़ा पहला इसका लिमिटेशन। सेकेंड इज़ लैक ऑफ कंपटीशन, यानी कोई कंपटीशन नहीं है, जिसकी वजह से जो मोमेंटम है इकोनॉमी का वो कोई स्पीड में नहीं आता, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहता है। थर्ड वन, लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ सिस्टम, यानी किसी एक को कोई फ्रीडम नहीं होती, तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएगी उसी के हिसाब से आपको चीज़ें चलानी है, वैसे ही काम करना होगा। ये तीसरा इसका लिमिटेशन है। चौथा, कंप्लीट इंटरफेरेंस स्टेट का होता है, ठीक है। कंप्लीट इंटरफेरेंस मीन्स पूरा का पूरा जो रूल है वो गवर्नमेंट बना रही है, तो ये फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी है, ठीक है। हो सकता है कि बाद में जाके वो गवर्नमेंट जो है वो सेमी गवर्नमेंट बन जाए और बाद में वो अपना डिक्टेटरशिप चालू कर दे, तो ये भी हो सकता है, राइट। तो हमने दो तरीके के सिस्टम्स देखे हैं, एक प्राइवेटली कंट्रोल्ड मार्केट सिस्टम एंड गवर्नमेंटली कंट्रोल्ड सोशल सिस्टम। नाउ एज आई एम टॉकिंग अबाउट कि अभी तक आपने इंडिया का नाम नहीं सुना, वेरी गुड। अब हम देखने वाले हैं मिक्स्ड इकनॉमी को। मिक्स्ड इकनॉमी है वो इन दोनों यानी मार्केट और सोशलिस्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती और काफ़ी हद तक इनकी जो लिमिटेशंस हैं उनको भी कवर कर देती है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर हमने प्राइवेट और पब्लिक को अलग अलग देखा। मिक्स्ड इकनॉमी में दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं एंड दे डू नॉट वर्क एज अ कॉम्पिटिटर बट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। यानी एक कॉम्प्लीमेंट्री की तरह वो काम करते हैं, कॉम्पिटिटर की तरह नहीं, एक दूसरे का सब्सटीट्यूट बन जाते हैं, राइट। सच इंडस्ट्रीज, सच फैक्ट्रीज, सच प्रोड्यूसिंग डिफेंस मटेरियल, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, रोड और इरिगेशन में साथ मिलकर ये दोनों काम करते हैं। पर इस सिस्टम में, राइट, इस मार्केट सिस्टम में, मिक्स्ड सिस्टम में इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री फॉर द गवर्नमेंट। स्पेशली यहाँ पर जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट थोड़ा सा अपने पास ज़्यादा रखती है, और वी कैन से दैट कि 51% ऑफ कंट्रोल विल बी फॉर द गवर्नमेंट एंड रेस्ट 49% कंट्रोल विल बी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। यानी जो थोड़ा सा मेजर कंट्रोल है वो गवर्नमेंट अपने पास रख देती है और उसके बदले वो टैक्सेस जमा करवाती है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सेस दे यूज टू प्रोवाइड सब्सिडीज एंड द रिलैक्सेशन फॉर टैक्सेस दोज हु कांट पे सच मनी। मिक्स इकनॉमी जनरली प्राइवेट और पब्लिक को साथ लेकर आई और इसी वजह से इसे कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी कहा जाता है। कंट्रोल्ड इसीलिए क्योंकि ये बहुत सही तरीके से चल रही है अभी तक। कौन कौन से देशों में है? इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड, राइट, वो जो मिक्स्ड इकनॉमी फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा मार्केट सिस्टम और सोशल सिस्टम के जो डिसएडवांटेजेस हैं, राइट, जो लिमिटेशंस हैं, वो सारे लिमिटेशंस को बिल्कुल मिक्स्ड इकनॉमी अच्छी तरह ख़त्म कर देता है, राइट। और बोथ सिस्टम को अगर हमें एक साथ यूज़ करना है तो बेस्ट तरीका है मिक्स्ड इकनॉमी ही। मिक्स्ड इकनॉमी विटनेस करता है स्पेशली प्लानिंग के साथ साथ इम्प्लीमेंट को भी, यानी यहाँ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है और इम्प्लीमेंटेशन प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया जाता है, जिसमें प्राइवेट को प्रॉफिट भी मिलता है और गवर्नमेंट का सोसाइटी वेलफेयर भी हो जाता है। सो जनरली वी कैन से दैट कि वी कैन ऑल्सो विटनेस्ड द मिक्स्ड इकनॉमी, जैसा कि आज हम इंडिया में मिक्स्ड इकनॉमी को एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। हमारी इकनॉमी स्टेबल, कभी कभी इनस्टेबल हो जाती है, बट स्पेशली lack of coordination, inconsistency of economic policy, low rate of growth of development, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिक्स्ड इकनॉमी का भी लिमिटेशन पार्ट दिखा देती है। यानी इकनॉमी कभी कभी इनस्टेबल हो जाएगी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कभी कभी ऐसी पॉलिसीज़ भी आएगी जिससे इकनॉमी हिलेगी, या फिर ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा हाई होगा नहीं। सो ये कुछ लिमिटेशंस हैं बच्चों मिक्स्ड इकनॉमी के, राइट। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस 3 सिस्टम ऑफ मार्केट, राइट, मार्केट सिस्टम एंड सोशलिस्ट सिस्टम एंड मिक्स्ड इकनॉमी। ठीक है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना, ठीक है। टिल देन विल गेट बैक टू यू विद द एक्सरसाइज पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बी सेफ, ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड जस्ट बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।